the theory part, write yes sir in the chat box. Those who read the theory part at home, क्योंकि अभी मैं questions भी पूछ सकता हूँ theory वाले में, तो so kindly be very honest and let me know if you have read the theory part. ऐसा हो सकता है कि आपको time नहीं मिला हो, that's not an issue, but please write it in the chat box. Theory पढ़ लिया है जिन्होंने. Aryama has read. Anyone else? Yes. No, Aryama didn't write. अंकित लिखो भाई, आंसर में लिखो yes no, कुछ भी लिखो जल्दी. उसी हिसाब से यार मैं क्लास लूंगा ना, या तो मैं एकदम थ्योरी स्किप करके क्वेश्चंस में चले जाएंगे. No, अंकित said no. Everyone has to answer. Sarabjit, can you hear me? Yes sir, I can. Begin answering in the chat box. Yes no, कुछ लिखो जल्दी. Screen is not visible, Raj says. Raj, screen अभी तो हाँ अब दिख रहा होगा. No, 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 no. Ankita also no. Aryama also no. Sarabjit, you're not writing anything. Please write fast. Disha, no. You can't see the screen. That's fine. But I'm asking whether you read the theory part or not, because accordingly I'll start. Okay. So it seems many have not read, so we have to do it from here. Screen, Ankit, screen दिख रहा है? Yes sir. Okay, so write down median. सबसे पहला पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मीडियन क्या होता है. सो ड्रॉ ट्राइंगल लाइक दिस. ओके, अगर इस ए बी और सी ट्राइंगल में ए से अगर कोई लाइन आएगा एंड इट विल डिवाइड बी सी इक्वली, देन दिस लाइन इज कॉल्ड माय मीडियन. अरे यार ये पेन क्यों ऐसा चलने लगता है कभी कभी. राइट, दिस लाइन बी सी इज, दिस लाइन ए डी इज कॉल्ड माय मीडियन. उसी तरीके से अगर मैं एक और लाइन यहाँ बना दूं, ये इसको डिवाइड करेगा इक्वली, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड माय सेंट्रोइड. ठीक है. सो एक सेंट्रोइड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि दिस सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. Is that okay? This centroid G divides the median in the ratio 2:1. मतलब क्या कहना चाहते हो सर, कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है और यहाँ पर एक पॉइंट है G, इस पूरा लेंथ A to D, AD is given as 21 centimeter, right? So can somebody tell me what is AG and what is GD? 14:7. वेरी गुड. सो आप देखो AG और GD जो होता है 2:1 रेशियो में होता है. देयरफॉर ये 2 + 1 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स इज 21 and 1 part is 7. So this 2 part, that is 2 part will be 14 and that 1 part will be 7. आप ऐसे भी लिखते थे 2/3 of 2, because 2:1 रेशियो में, so 2/3 of 21. So this will become 1/3 of 21. Right? Now, point number 2 to be understood in centroid. This is a very important topic. Consider, write down this question. Consider an equilateral triangle. Consider an equilateral triangle. It has a, okay, just a minute. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका सेंट्रॉइड दिया हुआ है. ठीक है. The length of the side is A. This is centroid is G. This is A, B, C and D. What is the length of AG? What is the value of AG? Do this question. This is an equilateral triangle. Triangle A,
बी सी इक्विलैटरल है, ठीक है, बनाओ। Raj, can you see the screen? Sarabjit, can you see the screen? स्क्वायर बाई 4 का जो मतलब सर, एक मिनट। Okay. ए बाई 2 रूट 3। Yeah. ए बाई 2 रूट 3। Okay. People, those who can see the screen can see that एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में AD जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, राइट? सिर्फ AD इज परपेंडिकुलर, you know, equilateral triangle में this angle is 60 degree, this angle is also 60 degree, right? If this is A, you remember, if this is A, then what will be this AD by trigonometry? Sin theta. If this is A, this is A cos theta and this AD is A sin theta. So A sin theta, sin 60 degree क्या होता है? √3/2. This is called height of an equilateral triangle, AD. ये याद रखो. So remember this height. Height का फॉर्मूला क्या होता है? √3a/2. Height of an equilateral triangle if the side is A. अन्वेषा, तो AD अगर ये मुझे याद रहना चाहिए, learn it because बहुत यूजफुल है। और ये 2:1 रेशियो में होगा, इसके कारण AG का वैल्यू क्या होगा? 2/3 ऑफ दिस हाइट A √3/2, राइट? 2 gone, you get A by √3. So write down this AG is A by √3. Understood? सर एजी का क्या होगा? 2A by √3, सिर्फ A by √3। अच्छा, एजी है ना, मतलब हम जीडी का पकड़ा था सर। हाँ, 2/√3। हाँ, आप शायद GD निकाल रहे होगे, तो GD इज A/2, हाफ होता है उसका। हाँ। आप लिख सकते हो GD इज A/2√3, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। पीपल, सरबजीत, डिड यू गेट दिस? दिशा, समझ में है? Yes, sir. Yeah, kindly be active on your chat box if you don't want to speak, everyone. Every time I finish something and you get it even before I finish, you can write in the chat box, yes sir. I will accordingly change my speed. Now देखो, next देखो, why is this going up again and again? Ankit, can you help me out? ये वाला मैं मान लो पहले तो पेन जब लेता था तो ये वापस नहीं जाता था यार, ये वापस चला जा रहा है पेन वाला पार्ट। दिस इज इरिटेटिंग मी। एनीवे सर असल में इंटरफेस, मतलब पेन वाला इंटरफेस कभी यूज नहीं किया सर, तो उस वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम डिस्कसिंग। ABC, मान लो AD इज अ मीडियन, मतलब ये और ये इक्वल होगा, ठीक है? इसका वैल्यू लिखो 20, इसका वैल्यू लिखो 15, ठीक है? एंड you have to find the length of BD. Find the length of BD if this is given 12, if AD is given as 12. ये मीडियन है, AD is a median। बनाओ इसको। अभी हम लोग फर्स्ट क्लास में थ्योरी करने में ही हमारा टाइम चला जाएगा जी, सेकंड में हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो थ्योरी अलोंग विद सम बेसिक क्वेश्चंस, कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे अभी, ठीक है? Sarabjit, understand that, can you hear me? If this is x, this is also x, correct? Yes. The thing is, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घर पे ट्राई करना। एक ये 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉप करना, ठीक है? ये 90 डिग्री ड्रॉप करना, इस वैल्यू को कुछ लेना। ये एक पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसमें पाइथागोरस लगाओगे
और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ए सी एंड मान लो ये पी है, ACP will be a right angle triangle and ADP will be a right angle triangle. Similarly ABP will be a right angle triangle. थोड़ा सा आगे पीछे करोगे ना तो एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम लोग याद रखते हैं एंड वो रिजल्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बनाओ, एक मीडियन बनाओ अंकिता, मान लो ये x है, मान लो ये y है, ठीक है। मीडियन का लेंथ मान लो m है और ये वाला p है और ये वाला भी p है। तो रिजल्ट क्या है कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द आर्म्स, मतलब मीडियन कहाँ से निकला है, यहां से निकला है, a से निकला है। तो स्क्वायर्स ऑफ द आर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस ये वाला लेंथ जो बराबर बटा है, राज समझ में आ रहा है, ये बराबर क्या बटा है p, सो दैट इज p स्क्वायर। इसको एक्चुअली ओपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं, नो नीड टू रिमेंबर द नेम ओपोलोनियस थ्योरम, बट दिस कैन बी रिमेंबर्ड एज अ रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। राइट, यस सर, दोज हु अंडरस्टूड। मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यस, सो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर एक बार अगले वाले स्लाइड पे चलोगे, देखना है, बोलो, कॉपी करना था। कर लो कॉपी। कर लिया अंकित? यस सर, यस सर। इसका आंसर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर। अभिषेक आंसर, सरबजीत क्या हो गया यार आप लोगों को, इतना छोटा सा क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हो। 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डबल। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? एक्स के टर्म्स में, रूट के टर्म्स में बता दो। दिशा प्लीज read the question. I think this is done right. 37 by root over 2. Root over 337 root over 337 divided by root over 2. मतलब 337 by 2 ऐसा ना? हाँ, होल ठीक है। एनीबडी एल्स? राज, अंकिता, अन्वेषा, पता है क्या आप लोग एकदम वन वे कम्युनिकेशन के कारण क्या करते हो ना, अपना ही टाइम वेस्ट करते हो, मेरा कुछ नहीं जाना है। मैं टॉपिक्स जैसे तैसे ये कंप्लीट होगा नहीं होगा मैं क्या कर सकता हूँ। एकदम डम टाइप का बैठे रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे ना लिखोगे, कैलकुलेशन करने का बात आएगा तो सोचते रह जाओगे कि सर कर दें, कुछ नहीं हो सकता यार। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है आप लोग पर। चलो इसका आंसर, दिशा प्लीज रीड द क्वेश्चन। ओके व्हाटएवर, आई डोंट नो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स बट आई घर पे बैठ के सॉल्व करना। दिशा रीड द क्वेश्चन। Solve it. Ankit, read the question.
ABCD is a parallelogram with AB equal to 21 centimeter, BC 13, and BD equal to 14 centimeter. Find the length of AC. Disha, you can't see the screen. Just now, अरे यार. Anyone else who can't see the screen? It's visible, sir. Disha, do one thing. Please disconnect the call and connect again. I think you can see. चलो try करो इसको, इस question को. Sir, here the length of BC and BD is given, right? अच्छा, ठीक, okay. I'll open it once more. The running program is in comparison with certain running. Okay. Done? Any answer? Screen दिख रहा है अंकित? Ankit, can you see the screen? Disha, can you see the screen now? Yes, sir. Okay. See, this is a parallelogram, okay? ABCD is a parallelogram. So I'm writing A, B, C, D. I hope you remember a parallelogram looks like this, okay? Opposite set of sides are parallel. AB equal to 21, so write down 21. BC equal to 13, write down 13. BD, that means this one. BD is 14. Find the length of AC. Other side निकालना है, other diagonal का length निकालना है, right? आप लोग को पता है, इधर देखो. Hope you guys know that a parallelogram क्या होता है? Suppose this is a parallelogram, then जो भी आपका diagonal होता है ना, दूसरा diagonal उसको bisect करता है. That means this side is equal to this side and this side equal to this side. So remember the diagonals of a leaf flow note में diagonals of a parallelogram bisect each other. तो ये अगर 20 है तो ये 10-10 में बढ़ जाएगा. ये अगर 15 है 30 है तो 15-15 में बढ़ जाएगा. Something like this. Okay. So coming to this. So I think now you can apply that result directly. ये पूरा लेंथ आपको पता है नहीं पता है, but BD you know. BD is 14 तो ये वाला पार्ट 7 हो जाएगा. राइट 7 हो जाएगा. राइट ये अगर x है तो ये वाला भी x होगा. दैट मींस दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन. सो इन दिस ट्रायंगल ACB इट इज द मीडियन. BO इज द मीडियन. अगर BO मीडियन है तो क्या होगा? लिखोगे 21 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस दैट x स्क्वायर. सॉल्व करो, रिजल्ट बताओ. सर पहले हम लोग CD निकालेंगे फिर AB देन AC भी निकाल सकते हैं. पहले हम लोग CD, हाँ CD तो 21 ही होगा ना राज? CD 21 होगा और फिर AC. वही बात है कि आपको AC निकालना है तो आप X निकालोगे तो उसका डबल हो जाएगा AC. आंसर विल बी नॉट X बट 2X. करेक्ट. कम ऑन सर पहले हम लोग CD निकालेंगे फिर AB and then AC. CD is 21. Opposite sides of a parallelogram are equal. Done?
रिजल्ट बताओ सॉल्व करके। Ankita, Anvesha, what is the result? 16, that's fine. Do this question. Sarabjit, can you read the question for me? Yes, that's fine. सर बस एक पार्ट 16 तो बोथ पार्ट मिला के तो उतना आएगा ना 32। देख लो यार, x का वैल्यू जो भी आया होगा उसका डबल होगा आंसर। x का वैल्यू क्या आया? 16, तो 32 होगा आंसर। Everyone please note 32 is the answer. Yes, this, Sarabjit, read the question and others start doing. BE and AD are the medians of an equilateral triangle ABC and intersecting at O. Find the area of quadrilateral DOE. Okay. एरिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 156. I am drawing the diagram along with me. You can also draw. ABC is an equilateral triangle, so I'm writing A, B, and then C. In BE is the median, so B to E is a median. A to D is a median. Median है यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। An equilateral triangle है, तो anyway सारे बराबर ही होंगे, right? An area of triangle ABC is given 156. What is the area of quadrilateral DOE? DOE. Go ahead. एक और मीडियन बना लो जी, आपको सुविधा होगा। एक और मीडियन बना लो। सरबजीत, आई थिंक पिछले क्लास में मैंने एक ये क्वेश्चन किया, बताया था कि जो भी सेंट्रॉइड होता है, इट एक्चुअली मेक्स, sorry not centroid, centroid, it actually makes 6 triangles, 1 2 3 4 5 and 6, and all of the 6 triangles are equal in area, correct? Based on that, tell me the answer. Okay. Raj, क्या है आंसर? I think all of these are equal in area. In this case also, ये A है तो ये भी A and A, तो 6A का वैल्यू दिया हुआ है. That means A is how much? 26. Then what is DOEC? 2 times of 26. ठीक है. Next question, question number 2. अंकित क्वेश्चन पढ़ो. In triangle STU, angle STU is equal to 90 degree, ST equal to 10, TU 24, and segment TR is a median. Find TR. Right. तो इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, ST का वैल्यू 10 दिया हुआ है, TU का वैल्यू 24 दिया हुआ है, सेगमेंट TR इज द मीडियन. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस TR. मीडियन है, इसका मतलब ये बराबर होगा. कॉपी करो. Yes, what is the answer? अंकित देखना जरा, एक साइड 10 है, दूसरा 24 है, तो मैं ना क्या करता हूँ कि 2 कॉमन निकाल लेता हूँ. ओके, सो 2 5s and 2 6s. सो ये राइट एंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट, सॉरी 2 6s नहीं 2 12s. सो 5 12 and 13 हो जाएगा ना.
तो 5, 12 और 13 होगा, तो ये 10 है, ये 24 है, तो SU क्या हो जाएगा? 26 26 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा और ये वाला भी 13 हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं चाहूं तो वो फॉर्मूला लगा सकता हूं। दिशा देखना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीडियन m 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू कितना आएगा? मेरे को लगता है 13 ही आएगा। अनवे अरियामा कितना बता रही है? 13, दैट्स गुड। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट मेरा एक और अंडरस्टैंडिंग है इसमें। देखो सरबजीत, प्लीज नोट दिस इज अ ट्रायंगल स्ट्रेट में असाइन यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, मेनी अप्रोचेस आर पॉसिबल, बट यू नो व्हाट, आई थिंक, हाँ जी, मीडियन का वैल्यू 13 ही आएगा। 13 ही आएगा, करेक्ट। देखो ये समझ में आता है मुझे। एक मैं अगर वर्चुअल ट्रायंगल बना लूं, सॉरी वर्चुअल सर्कल बना लूं, राज, वर्चुअल सर्कल अगर आप बनाओगे ना, तो देखना R point will behave like a center. ये पिक्टोरियल है, आपको हमेशा ध्यान रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक रिजल्ट भी बताऊंगा। R point behaves like a center. If this is the center, then this is the radius, this is the radius, this is also the radius. Then they will be equal. Actually, नोट करो, नोट में लिखो, in any right angle triangle, अगर कोई भी आप right angle triangle लोगे ना, तो centroid always lie at the midpoint of the hypotenuse. So centroid जो है ये G है। तो अगर ये centroid है, इसका मतलब ये मिड, ये वाला पॉइंट मिडिल में है। सो इस सेंट्रॉइड जो होता है, इट इज जैसे मान लो बीच में अगर सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड जो पोर्शन होता है, तो इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सारा बराबर होता है। सो here you will see that this part and this part will all be equal, so answer will be directly 30. ठीक है? So 3 ways I have told you. Hope it is okay. Write yes sir in the chat box. Sir, could you हाँ जी, please repeat the first approach? हाँ, first approach is by that result. दिशा, रिजल्ट क्या था? ट्वाइस दी आर्म्स लेंथ का स्क्वायर, सॉरी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस जो भी बराबर में बटा है कोई भी एक, 13 का स्क्वायर। तो 13 कहाँ से मिला? 13 ये 26 का आधा होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये किए कि ये अगर 10 है, ये अगर 24 है, तो ये वाला 26 होगा। ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं ऐसे स्प्लिट करता हूँ, जो अगर इवन रहता है ना, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 10 और 24 2 कॉमन निकालोगे तो 5 और 12 आएगा। आपको याद था पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12 और 13 होता है, तो जो तीसरा साइड होगा वो 26 होगा। Yeah, got it, sir. Thank you. ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर दिस मीडियन आपको आना चाहिए समथिंग कॉल्ड इन सेंटर। ये पॉइंट्स हमें देखना है, इन सेंटर, और इसमें एक आपका आएगा इन सर्कल, और इसमें आपको समझना है इन रेडियस क्या होता है। राइट, आपने पढ़ा है कि सपोज देयर इज एनी ट्राइंगल, देन अगर ये वाला एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर, साइड का नहीं, अगर एंगुलर बाइसेक्टर में ऐसे स्कूल्स में ऐसे कंस्ट्रक्शन करते थे जी, इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर जहां मिलेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड माय इन सेंटर आई। अगर मैं इसको रेडियस ले लूं, ध्यान से देखो जी, इसको रेडियस ले लूं और एक सर्कल अंदर ही बनाऊं, तो ये कहलाएगा मेरा इन सर्कल। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कहलाएगा मेरा इन रेडियस। लिखो ध्यान पॉइंट को, अंदर में जो सर्कल बनेगा, और ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, जिसने एंगल को बाइसेक्ट किया बराबर, दिस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर बाइसेक्टर।
पता नहीं आज क्या हो रहा है इसमें. I'm not able to write properly here. Is that okay? Right, yes sir. Those who understood three terms: in center, in circle, in radius. Yes. थोड़ा जल्दी जल्दी करना है जी, वरना ना 3 महीने लगेंगे ज्योमेट्री खत्म करने में. Okay, let us do this now. Consider a triangle which is having, what's wrong? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको इसका इन रेडियस निकालना है, r का वैल्यू निकालना है. लेंथ इज गिवन 10. राइट ऑन द क्वेश्चन. लेंथ इज गिवन 10. साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्विलैटरल है. People, after this question, I'll take a short break of 10 minutes, okay? I'll fix this issue. I'm not able to write properly. I don't know why. You have to find the in radius. R का value निकालना है. Question number 1. Question number 2 लिखो. बनाओ. Keep doing. This angle is given as 80 degree. You have to find angle BIC. I is the in center. Angle BIC क्या होगा? Okay. Any answer? ये एंगल कितना होगा जी? 30 डिग्री. ये प्रॉपर्टी पढ़ा था सर, उससे भी हो सकता है ना. तो मतलब जो इसका एरिया है, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है, हाँ, डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर सर. अच्छा अच्छा. डेल्टा इज इक्वल्स टू RS आप यूज कर रहे हो. दैट्स फाइन. ठीक है, वो भी सही है. ओके गाइस, आप देखो ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये जो साइड है ये 90 डिग्री गिरेगा. करेक्ट. आपको पता है ना, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है. अगर ये 90 डिग्री गिरेगा तो ये अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो ये एक्चुअली इसका मीडियन है. ये ABC ट्राइंगल में AD इज एक्चुअली द मीडियन. अगर मीडियन है तो आपको लेंथ ऑफ द मीडियन अभी आपने पढ़ा था, या तो ये वाला पार्ट 2:1 रेशियो में होगा, तो ये 1/3 ऑफ द टोटल हाइट होगा. या तो आप ऐसे भी समझो, ये 10 तो ये भी 10 और ये वाला हो जाएगा हाफ, दैट इज 5. ये एंगल है 30 डिग्री. तो अगर बेस दिया हुआ होता है तो r का वैल्यू क्या होता है? 10 में जाता है. सो 5 tan 30 डिग्री. व्हाट इज tan 30 डिग्री? 1/√3. So it is 5/√3. So r is 5/√3. ऐसे समझ सकते हो? Right? Yes sir, in the chat box. Those who understood. Yeah. Otherwise आप कैसे कर सकते थे जी? There would have been another way. आप ऐसे करते कि ये वाला जो है, it is the in center. It is also called my centroid. If it is a centroid, then the r will be 1/3 of total length AD. And what is the total length of AD? Height of the triangle. What is the height of an equilateral triangle? √3/2 times of A. A is 10. So it's 5/√3. Same. So remember, for an equilateral triangle, I जहां पे होता है वहीं पे G होता है. ध्यान रखना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में पॉइंट I एंड पॉइंट G कोइंसाइड करेगा. टेल मी एंगल BIC क्या होगा? स्क्रीन दिख नहीं रहा था. ठीक है. अभी देखो एंगल BIC क्या होगा? 180 minus 60, that is 120. 180 minus 60. Okay. 120. That's fine.
दैट्स फाइन एक्चुअली। आप देखो ये 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस इज 90 डिग्री ऑन द टेंजेंट, ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये 60 होगा तो बगल वाला भी क्या होगा 60 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई एम सॉरी, this is not an equilateral triangle, this is given as 80, but still this is given as I, तो ये तो एंगुलर बाइसेक्टर है ना जी। 30 में कैसे लिख गया, 30 में कैसे लिख गया, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी पीपल, मैं इसको भी इक्विलैटरली समझ गया था, नो इश्यूज। आप एंगल बराबर कर लो, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा दैट फॉर श्योर, ये एंगल अल्फा तो ये वाला भी एंगल अल्फा ही होगा, राइट। दिस इज 80 डिग्री। नाउ this angle is suppose beta, then this angle is also beta. If this is 80 degree, then what is 2 alpha plus 2 beta? 100 degree. That means what is alpha plus beta? 50 degree. समझे, एक एंगल 80 डिग्री है तो दो रिमेनिंग दो एंगल का सम क्या होगा 100 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा विल बी 50 डिग्री। इस ट्राइंगल में अल्फा और बीटा 50 है तो ये बच जाएगा कितना 130 ना होगा। आप लोग ने भी शायद इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया था, इस कारण आंसर आप लोग का वो आ रहा था, ठीक है। सो आंसर विल बी 130। कैसे सर? अरे वही तो बताया, मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये आई है, आई मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बोला था सर इसका सब कुछ। इसका बोला था यार, इसका इक्विलैटरल कैसे बोलेगा, ये तो एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा वो अलग वाला प्रॉब्लम है क्या? हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान से देखो। मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये इन सेंटर है, इन सर्कल का, तो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ये भी एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ये बीटा तो ये भी बीटा होगा। तो आप समझो कि ये 80 डिग्री है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिला के 100 डिग्री होगा ना, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा ट्वाइस ऑफ बीटा 100, तो अल्फा प्लस बीटा 50, तो ये अल्फा ये बीटा, तो इस ट्राइंगल में बी आई सी में रिमेनिंग क्या हो जाएगा 130, क्योंकि टोटल होता है 180 डिग्री, 130, so answer will be 130. So angle BIC here will be 130 degree. Actually एक रिजल्ट होता है जी 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, एंगल BIC जो होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ दैट वर्टेक्स एंगल, लिख लो पीपल। ज्योमेट्री में ना जिनको जितना रिजल्ट याद रहता है ना उनका स्पीड उतना बढ़ेगा। सो आप प्लीज इस रिजल्ट को ध्यान रखो, क्या कि अगर ये आई है, कोई भी ट्रायंगल हो, यहां पर इसको अगर जोड़ दिया गया, ये है बी, ये है सी, ये है ए, देन इस एंगल का रिजल्ट होता है एंगल बी आई सी होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर आपको याद नहीं रहता है चीजें, नो इश्यूज, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू डू इट, ठीक है people, we can relax for 5-10 minutes, okay, and then let me fix this issue। कुछ हो सकता है मुझे सिस्टम चेंज करना पड़े, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा चाय ब्रेक ले लो, ओके भाई, ओके तो बोल ले, तब तो मैं कट करूंगा। यस सर। Yes, sir. हम्म